Good morning, friends. The new session of Death of Partner that we are going to start today. And here, the calculation of gain ratio and profit ratio, that two things we are going to learn today. In this session, you will be able to understand how to solve the problem of retirement as well as death. Both situations are on similar line. I'm taking death of partner, but you require to prepare there also gain ratio in retirement. So today we will understand both the chapters, a subtopic, which is very important. That is a new ratio calculation. For that purpose, I have prepared some examples which are very necessary to be understand, and that examples I am going to share on the PPT screen. See that you can see my screen. There is an example of this partner X and Y and Z. These are three partners sharing profits and losses in the ratio 1 is to 2 is to 1. Y died, the gain ratio in the continuing partners is 1 is to 2. Calculate new ratio. In this problem, what you found that middle partner, second partner is died, and the gain ratio is required to be calculated when the continuing partner's new share is not given, gain ratio is given. गेन रेशियो इज प्रोवाइडेड. ये एग्जांपल में आपको गेन रेशियो दिया है. क्या निकालना है आपको? न्यू रेशियो निकालना है. राइट डाउन दिस एग्जांपल. Next example also you have to write this example firstly, then write down second example. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 3 is to 2 is to 2. Y died, सेकेंड पार्टनर यहाँ पे डाइड हुआ है, उसका रेशियो 2/7 है. कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो. उसका न्यू रेशियो उस फर्म का हमें कैलकुलेट करना है, एज वेल एज वी नीड टू कैलकुलेट गेन रेशियो टू. थर्ड एक प्रॉब्लम भी आप लिख लो. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 3 is to 1 is to 1. Z died, मतलब थर्ड पार्टनर डाइड हुआ है, एंड न्यू रेशियो इज 2 is to 1. कैलकुलेट द गेन रेशियो. आपको न्यू रेशियो दिया है और कैलकुलेट क्या करने को कहा है? गेन रेशियो कैलकुलेट करने को कहा है. Now, I'm stopping this sharing of screen. We will again see the next problems afterwards. Before that, we will see some solution of these problems on the board. See, now you can see the board on which I'm going to solve the first problem. पहला प्रॉब्लम जो है हमारा, वहां पे तीन पार्टनर्स है. कौन से तीन पार्टनर्स है? एक्स, वाई एंड जेड. उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो कितना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो प्रोवाइडेड इज 1 is to 2 is to 1. पार्टनर के नाम यहां पे लिख देता हूं, एक्स, वाई एंड जेड. दीज आर थ्री पार्टनर्स. देन ऑल्सो यू कैन सी वाई डाइड. कौन डाइड हुआ है यहाँ पे? वाई. मतलब डिसीज द पार्टनर कौन है? वाई है. एक्स एंड जेड कौन है फिर? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है. सो गेन रेशियो किसका आएगा? गेन रेशियो आएगा एक्स एंड जेड का. ओके. So Y died and the gain ratio of the continuing partners is 1 is to 2. मतलब यहां पे आपको गेन रेशियो भी दिया है. इस पोजीशन में आपको गेन रेशियो अगर दिया है, वो किसका है? 1 ऑफ एक्स एंड जेड का कितना है? 2 है. क्योंकि ये दोनों बिजनेस कंटिन्यू करने वाले, ये डिसीज्ड पार्टनर जो है ये डाइड हुआ है. Now you are required to prepare, you are required to find out the new ratio. तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपली एड दीज शेयर्स, you will able to find out the new ratio. तो न्यू रेशियो
calculation simply addition of these ratios 1 plus 1 2 and 1 plus 2 that is a 3. So न्यू रेशो आपका क्या हुआ, न्यू फर्म का रेशो क्या हुआ 2:3, दैट इज न्यू रेशो इज इक्वल टू 2:3. मतलब x का कितना आएगा, x का आएगा 2/5 और z का कितना आएगा 3/5. Please write down this solution along with me. You understood that thing, that just add the old ratio and gain ratio, you will find out what new ratio. Second example solution, second example answer. In the second situation, what you have provided, if gain ratio is not given, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वहां पे आपको ऐसा सिचुएशन मैंने दिया है कि जहां पे गेन रेशियो नहीं दिया होगा, तो आपको न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है. दैट एग्जाम्पल इज एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2:2. That is old ratio between the x, y and z is 3, 2 and 2. Y died, यहां पे भी y पार्टनर मतलब सेकेंड पार्टनर डाइड हुआ है, तो ऑब्वियसली गेन रेशियो किसका आएगा, x एंड z का, अगेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का. कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो. इसी एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो भी और गेन रेशियो भी. लेट्स से हाउ टू कैलकुलेट फर्स्टली न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज सिंपल थिंग, जिसका डेथ हुआ है उस पार्टनर को छोड़ दो, मतलब इस शेयर को छोड़ दो, आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा. दैट इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू among x and y, that is 3:2. मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के शेयर यहां पे हमने कैसे फाइंड आउट किए, डायरेक्टली फाइंड आउट किए. जिस पार्टनर को दिस इज द पार्टनर जो है या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे छोड़ दो, उसका शेयर छोड़ दो, बाकी दो पार्टनर्स का शेयर कंसिडर करो और आपका न्यू रेशियो मिल जाएगा. इतना सिंपल ये है, पर इसके लिए मैंने ये सारा प्रोसीजर आपको पर्पजफुली दिखाया है. क्यों, इसके आगे भी कुछ रीजन है. गेन रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना है. ओके, गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया था. फॉर्मूला में ये कहा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो. ओके, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है. x और z के बीच में ये गेन रेशियो होगा, क्योंकि अभी गेन किसको मिलने वाला है, हु इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट रिटायरिंग पार्टनर और डाइड पार्टनर्स शेयर, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. दैट्स व्हाई वी विल फाइंड आउट द गेन रेशियो ऑफ x एंड z पार्टनर. x का जो शेयर था, न्यू शेयर, वो है 3. ओके, अभी इसकी टोटल कितनी हुई, 2 3 + 2 5. सो इस 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो 3/5. z का कितना है, इसका डिनोमिनेटर, z का डिनोमिनेटर कितना है, दैट इज 2. 2 टोटल ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज 5. ओके, अब हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस करेंगे. ओल्ड शेयर कितना है, 3 टोटल ऑफ दीज 3 नंबर्स, 3 + 2 + 2 कितना हुआ, 7. मतलब 3/7 इज द ओल्ड शेयर ऑफ एक्स पार्टनर. देन 2 that is a z's partner old share is 2 upon total of these 7. यहां पे अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये समझ में आएगा, 5 7 जा 35 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 3 जा 21
5 3s are 15. So subtraction of numerator is 6 upon 35. Here again, denominator is 35. 5 sevens are 35. 7 twos are 14 minus 5 twos are 10. The subtraction or deduction 14 minus 10 is 4 upon 35. अब ये गेन रेशियो कंसिडर करने के लिए आपको बस क्या कंसिडर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कंसिडर करना पड़ेगा. इसका न्यूमरेटर है x का, गेन रेशियो का न्यूमरेटर है 6 और इसका है 4. गेन रेशियो GR मैं शॉर्टकट में लिखता हूं यहां पे GR, गेन रेशियो इज इक्वल टू 6:4. बट ये अगेन सिंप्लीफाई हो सकता है, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. आपका गेन रेशियो कितना आया, 3:2 आया है. मतलब गेन रेशियो कैलकुलेशन जो है आपका वो 3:2 है. ये सिमिलर दिख रहा है आपको, किससे सिमिलर दिख रहा है, न्यू रेशियो से सिमिलर दिख रहा है. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल एग्जांपल में नहीं दिया है, एट दैट टाइम योर न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो आर सिमिलर, सेम. इट विल बी नॉट डिफर्ड, इट इज अ सेम रेशियो. तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत है क्या उस एग्जांपल में, बिल्कुल नहीं है. You just need to find out new ratio, and new ratio is just hiding off dyed partners share. You will find what, the new ratio, that is 3:2. यही आपका गेन रेशियो है, यही आपका न्यू रेशियो है. ये पर्पसफुली मैंने आपको बताया क्योंकि इसके जो कैलकुलेशन है ये बहुत सारे करने की जरूरत नहीं होती है, तो वापस आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो while calculating the goodwill, writing of the shares of goodwill in the gain ratio. ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सेकंड केस मैंने आपको बताया. और एक थर्ड केस होता है, वो क्या है, वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है. That third case is given of X, Y and Z. उनके प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो है 3:1:1. Just take out that example. The old ratio are 3:1:1. Okay, so what is the ratio, actually share क्या है, 3/4, 1/4 and 1/4. Now new ratio is also provided there. What is new ratio, 2:1. टू इज टू वन. पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे डाइड कौन हुआ है, जो डाइड हुआ है उसका न्यू रेशियो में कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा, उसका संबंध वहां पे नहीं होगा. सो न्यू रेशियो किसका है, एक्स एंड वाई का है, 2:1. जेड डाइड है, डिसीज्ड पार्टनर है, और रिटायरिंग के केस में रिटायरिंग पार्टनर है. ठीक है, 2:1 इज द न्यू रेशियो. So what is calculation of gain ratio? Gain ratio का वही फॉर्मूला यूज करना है, न्यू माइनस ओल्ड. गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड. तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, द गेन रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज न्यू रेशियो 2 upon, न्यू शेयर इज 2 upon
total of these 3, denominator 3, new ratio of y 1 upon total of these two shares 3, तो minus old कितने हैं 3 upon total of all these, that is 3 plus 1 plus 1, so 3 upon, excuse me, 5, yeah, then 1 upon 5. So subtraction would be again make the similar what denominator of the both fractions, then you will be able to subtract the numerators. 3 into 5, 5 3 is 15, 5 2 is 10, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना है, डिनोमिनेटर पहले ये लिखना है इस मल्टीप्लीकेशन का, 5 2 is 10, माइनस का साइन एज इट इज, ये जो माइनस का साइन है एज इट इज, 3 3 is 9. So what is a subtraction? 10 minus 9, that is a 1. 1 upon numerator similar. 5 3 is again 15. Denominator fix हो गया. 5 1s are 5. 3 1s are 3. Your next subtraction and fraction is 2 upon 50. यहाँ पे अगेन आपको क्या कंसिडर करना है? 1, that is a numerator. 1 is to 2. तो यहाँ पे गेन रेशियो जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 1 is to 2. That is important calculation where it is needed in distribution or writing of, not distribution, it is in the writing of new deceased partners writing of goodwill. Okay, so x and y का gain ratio क्या आया? 1 is to 2 आया. Whether it is similar for the new ratio? Yes, it is differing. It is differing. It is new ratio here 2 is to 1 and gain ratio is 1 is to 2. यहाँ पे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि न्यू रेशियो आपके एडजस्टमेंट में दिया है. पिछले एग्जांपल में सेकेंड केस में हमें बस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था और डाइड पार्टनर का नाम बताया था. तो हमने गेस किया कि जो डाइड पार्टनर है उसका रेशियो भूल जाओ, बाकी पार्टनर्स का शेयर आपको ध्यान में रख के कंसिडर करके न्यू रेशियो निकालना है, और वही आपका क्या हुआ? गेन रेशियो हुआ. सो दैट इज फॉर gain ratio and new ratio calculation. I am going to give you some assignments, some of the assignments on your screen. See it again. You can see my screen now, and some assignments are provided. Here it is assignment. Assignment number 1, it is given 3 problems are there. You can see X, Y, Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. Y died, second partner died Y, and the gain ratio in the continuing partners is 1 is to 1. Calculate new ratio. ये केस है. Second case है X, Y, Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5 is to 1 is to 2. Y died and calculate new ratio and gain ratio. यहाँ पे equal होगा, ये तो आपको पता है. Next, X, Y, Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 3 is to 1. और Z died, कौन पार्टनर डाइड हुआ है? Z डाइड हुआ है, थर्ड पार्टनर डाइड हुआ है. न्यू रेशियो किसका आएगा? फिर एक्स एंड वाई का आएगा, दैट इज 2 is to 1. यहाँ पे आपको अभी जो थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन हमने किया था थर्ड केस में, वही आपको करना है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो इज 2 upon 3 and old ratio of x is 2 upon 7. So like that subtraction you have to make and you have to find out the gain ratio. Here it is simple case, just hiding of the share, and first case is X, Y, Z
here the gain ratio is given and you need to find out new ratio by just adding. So here who is died, y is died. तो मतलब दूसरा शेयर, दूसरा शेयर जो ये टू वाला, ये हाइड करना पड़ेगा. फिर किस में ऐड करेंगे गेन रेशियो? एक्स और जेड में. एक्स का शेयर क्या है? 3 और जेड का शेयर क्या है? 1. तो 1 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 4 एंड यर जेड शेयर इज 1 प्लस गेन रेशियो 1 दैट इज 2. सो क्या आएगा? 4:2. दैट इज again if simplified it is a 2:1. That is a new ratio in the x and z. So that is what simple assignment that you can make it. And third, in the next slide it is given again three problems. Here you will find some of the additional cases with the Priyanka, Shweta, Hari are partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:3. Hari died, मतलब थर्ड पार्टनर डाइड हुआ है, ये पार्टनर डाइड हुआ है. गेन रेशियो आप दिया है 1:1. कैलकुलेट न्यू रेशियो. नेक्स्ट केस इज रमेश, सुरेश, रोनक. थ्री पार्टनर्स आर गिवन एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:2. रमेश डाइड, मतलब पहला पार्टनर, ये फर्स्ट पार्टनर डाइड हुआ है. कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो. अभी आपको बताया है, ये आपका असाइनमेंट होगा, आप करेंगे खुद. प्रॉब्लम भी लिखेंगे और सोल्यूशन भी लिखेंगे. Sixth is Deshmukh, Kulkarni and Joshi are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. Mr. Kulkarni died, मतलब second partner died हुआ. So and new ratio is also provided 2:1. Calculate gain ratio. तो इस केस का भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है. So that is all for today. Assignment is provided to you. You will be able to understand the required solutions. You have to share it with me, and whatever the things you doubt any you have, you should ask me. I will try to, I will definitely give the solution and clear your doubts. Thank you for joining in this session. We will see next in the next lectures. We will see the problems, practical problems which are asked for 10 marks in the board exam. Thank you for watching this video.